Welcome to The Explainer. Today, we're jumping right into some huge news from the Employees Provident Fund Organization, or EPFO. If you have a Provident Fund account, listen up because this is all about your retirement savings. Okay, let's get straight to the number you're probably here for. 8.25%. This is the new interest rate the EPFO is recommending for your savings for the 2025-26 financial year. And you know, that's a really strong competitive return, especially when you look at all the economic uncertainty out there. Now, while that interest rate was definitely the headline news coming out of the EPFO's big meeting, believe me, it was about a whole lot more. They also rolled out some major reforms that are really designed to bring your retirement fund into the modern age. So, moving beyond that interest rate, the first big change is all about making it easier for you to access your money. The board has approved some changes that specifically target those older, unclaimed accounts. And this is a huge deal for anyone who's switched jobs a few times over the years. So, what even is an inoperative account? Well, think of it as a dormant account. Basically, if you haven't put any money in for 3 years after you've hit 55 or retired, your account gets this label. And you'd be surprised, there are thousands of these just sitting there with unclaimed money that could be yours. So to fix this, the EPFO is launching a pretty cool pilot project. They're going to start automatically settling these small unclaimed accounts. The first wave is going to hit over 1.3 lakh accounts, and that adds up to almost 5.7 crore rupees that are going right back to the people who own them. And this right here shows you just how simple the new process is. For these accounts, the money is just going to show up in your Aadhaar Link bank account. You don't have to lift a finger. Seriously, no more paperwork, no more annoying follow-ups. And hey, if this pilot goes well, they might just expand it to accounts with even bigger balances. Okay, next up, let's talk about the reforms for employers. Now, I know this might seem like behind-the-scenes stuff, but trust me, when the system is simpler for companies, the whole fund just runs better for everyone, including you. You see, in the past, employers had to deal with this just jungle of complicated rules. It was a mess. But now, the EPFO is swapping all of that out for one single simplified procedure. And they're even offering a one-time amnesty deal to help trusts that fell behind get back on track without facing massive penalties. This whole administrative cleanup helps everybody. It means less paperwork for companies, more transparency for us, and it's expected to clear up over 100 long-running legal battles that have been clogging up the system for years. All right, on to the third major reform, smarter money management. We're talking about the huge responsibility of protecting your savings. I mean, with a fund this big, every single decision counts. So the board has approved some new rules to keep your money safe and help it grow. Just to give you a sense of the scale we're talking about here, this is the total fund, the corpus that the EPFO was managing as of March 2025. That is a staggering, mind-boggling amount of money. And you better believe protecting it is their number one job. So to guard that massive sum, the board has put in place new standard operating procedures for how they invest. We're talking clearer rules for things like ETFs, better management of their day-to-day cash, and even a dedicated team to watch over all the investment activity. It creates a super clear audit trail for every single rupee. Or, to put it simply, this new tougher rule book is all about doing two things at once. Growing your money by making smart investments, while also protecting your money by being really careful with risk. It's all about looking out for your future. So, after all that, what does this actually mean for you? Let's boil it all down to the key things that are going to impact your savings and, honestly, your peace of mind. It really comes down to three things. First, your savings are set to earn a solid return. Second, getting your own money back, especially from those old inactive accounts, is about to become automatic and totally hassle-free. And third, the whole system that manages and invests your life savings is just getting better, more transparent, more efficient, and more secure. You know, this latest round of updates really shows a clear focus on stability, making things simpler, and boosting security. From automating claims to beefing up investment oversight, the whole point is to build a stronger system that works for you. Which leaves us with this final thought for your financial future.
नमस्कार। तो कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में ना कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ, ईपीएफओ ने हाल ही में कुछ बहुत बड़े फैसले लिए हैं जो सीधे सीधे हम सब की वित्तीय सुरक्षा पर असर डाल सकते हैं। तो चलिए आज इन सभी जरूरी अपडेट्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन बदलावों के रिटायरमेंट के पैसों पर आखिर असर क्या पड़ेगा। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियमों का फेरबदल नहीं है, ये मामला सीधे भविष्य की वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रोविडेंट फंड पर पता है कितना 8.25% की एक शानदार ब्याज दर की सिफारिश की है। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। मतलब सोचिए, दुनिया भर में इकोनॉमी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ईपीएफओ ने लगातार 8% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ये एक बहुत ही मजबूत परफॉर्मेंस है और ये दिखाता है कि लोगों का निवेश कितनी सुरक्षित जगह पर है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अच्छा, तो ये तो हुई ब्याज दर की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं और उन बदलावों पर नजर डालते हैं जो फंड तक पहुंच को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाने वाले हैं। देखिए, एक बहुत आम समस्या रही है इनऑपरेटिव या निष्क्रिय खातों की। मतलब वो खाते जहां लोगों का पैसा सालों साल बस फंसा रहता है। अब कोई भी खाता निष्क्रिय तब माना जाता है जब कोई मेंबर 55 साल का हो जाए और उसके बाद लगातार 3 साल तक उसमें कोई नया पैसा जमा ना हो। तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईपीएफओ अब एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। इसमें क्या होगा, दावों का सेटलमेंट अपने आप मतलब ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा। और ये प्रोसेस ना कमाल का सिंपल है। सिस्टम खुद ही ऐसे निष्क्रिय खातों को ढूंढेगा जिनमें 1000 रुपए या उससे कम का बैलेंस है। फिर मेंबर के डिटेल्स को ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा और पैसा सीधा आधार से जुड़े बैंक खाते में भेज देगा। सबसे अच्छी बात, इसके लिए कोई क्लेम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। सिर्फ शुरुआती फेज में ही ये प्रोजेक्ट 1.33 लाख खातों तक पहुंचेगा और करीब करीब 5.68 करोड़ रुपए उनके सही मालिकों को वापस लौटाए जाएंगे। ये सच में मेंबर्स के फायदे के लिए बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब बात करते हैं उन रिफॉर्म्स की जो कंपनियों यानी एम्प्लॉयर्स के लिए किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे कर्मचारियों का क्या लेना देना। तो देखिए, जब कंपनियों के लिए नियम आसान होते हैं ना, तो कर्मचारियों के बेनिफिट्स भी ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। ये जो पहले और बाद की तुलना है ना, ये साफ दिखाती है कि कैसे पुराने कागजी और पेचीदा सिस्टम को एक नए डिजिटल और आसान सिस्टम से बदला जा रहा है। मतलब जिन कंपनियों के अपने खुद के पीएफ ट्रस्ट हैं, उनके लिए अब नियमों का पालन करना यानी कंप्लायंस बहुत ही आसान हो जाएगा। इस सुधार का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है एमनेस्टी स्कीम या कह लीजिए माफी योजना। ये उन ट्रस्ट्स को एक मौका देती है जो अब तक नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं, ताकि वो भी वापस सिस्टम में शामिल हो सके। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पूरा सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, कानूनी पछड़े कम होंगे और आखिर में जाकर कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो पाएगी। अब जरा उन बड़े बदलावों पर भी नजर डालते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे सिस्टम की नींव को और भी मजबूत बना रहे हैं, ताकि सबका भविष्य सुरक्षित रह सके। स्क्रीन पर जो तस्वीर है, ये उसी 239th बोर्ड मीटिंग की है जहां ये सारे बड़े फैसले लिए गए। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि इन पॉलिसीज के पीछे वो लोग हैं जो करोड़ों मेंबर्स के भविष्य को सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के हिसाब से नई ईपीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम्स बनाई जा रही हैं। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए और भी सख्त और पारदर्शी नियम लाए जा रहे हैं। और तो और यूनाइटेड किंगडम के साथ एक नया समझौता भी हुआ है ताकि डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ना देना पड़े। ये सारे बदलाव मिलकर सिस्टम को हर लेवल पर ज्यादा सेफ बनाते हैं। और जैसा कि कोर्ट साफ कहता है, इन सभी सुधारों का आखिरी मकसद एक ही है, रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए निवेश पर सबसे अच्छा रिटर्न देना और करोड़ों ईपीएफ मेंबर्स के लॉन्ग टर्म हितों की रक्षा करना। अच्छा, इन सुधारों का असली मतलब समझने के लिए ना ये जानना जरूरी है कि ईपीएफओ आखिर कितना बड़ा है, इसका स्केल क्या है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.22 करोड़ से ज्यादा नए मेंबर जुड़े और 6 करोड़ से भी ज्यादा क्लेम सेटल किए गए। ये नंबर्स बताते हैं कि ईपीएफओ कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। तो आखिर में बात सिर्फ पॉलिसीज और नंबर्स की नहीं है, यह असल में पूरे भारत में करोड़ों लोगों के रिटायरमेंट को सुरक्षित करने के एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा है। और इसी के साथ एक सवाल भी उठता है, जैसे जैसे भारत का वर्कफोर्स बढ़ रहा है और बदल रहा है, आज किए गए ये सुधार आने वाले कल में हमारे देश की सोशल सिक्योरिटी की तस्वीर को आखिर कैसे आकार देंगे। सोचिए, सर्दियां आ गई हैं और आप, मेरा मतलब है, कोई अलमारी से अपनी एक पुरानी जैकेट निकालता है और अचानक से उसकी जेब में एक 500 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट मिल जाता है। अरे वो खुशी तो कमाल की होती है ना? उस वक्त जो हैरानी और खुशी मिलती है वो एकदम अलग होती है। लेकिन
क्या हो अगर एक पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम इसी तरह लोगों की पुरानी जैकेट टटोल कर उनका भूला हुआ पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में डाल दे, बिना किसी फॉर्म के। हाँ बिल्कुल, बिना किसी फॉर्म या अर्जी के। आज की इस गहन चर्चा में कुछ ऐसे ही जादू जैसे लगने वाले लेकिन बिल्कुल असल नीतिगत बदलावों को डिकोड किया जाएगा। और मैं कहूंगा कि ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये उन फैसलों का सीधा असर है जो अभी हाल ही में लिए गए हैं। देखिए, आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय है 2 मार्च 2026 को जारी किए गए वो आधिकारिक दस्तावेज, PIB वाले। जी हाँ, वो प्रेस विज्ञप्तियां जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 239वीं बैठक से निकल कर आई हैं। जो नई दिल्ली में हुई थी। एकदम सही। और इस अहम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने की थी। इसमें कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। तो इस चर्चा का जो मिशन है वो बहुत ही साफ है। सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां ना अक्सर भारी भरकम शब्दों और बहुत ही जटिल आंकड़ों से भरी होती हैं। बिल्कुल, आम इंसान के लिए उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही तो उन दस्तावेजों में छुपे असली अर्थ को बाहर निकालना और ये समझना कि कैसे 8.25% की ब्याज दर, नए डिजिटल सुधार और जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं वो असल में देश के करोड़ों कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं, यही आज का हमारा लक्ष्य है। और श्रोताओं के लिए ये जानना बेहद प्रासंगिक है क्योंकि ये सीधा उनकी वित्तीय सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा मामला है। सही कहा। और हाँ, हमेशा की तरह मैं स्पष्ट कर दूं कि ये कोई आम न्यूज बुलेटिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक निष्पक्ष विश्लेषण है जहां तथ्यों को बहुत ही सरल और अदिलचस्प तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खबर से शुरुआत करते हैं। 8.25% वाली खबर। जी, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए EPFO पर 8.25% की ब्याज दर की सिफारिश की गई है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल भी यही दर घोषित की गई थी। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो केवल ये आंकड़ा नहीं है, तो और क्या है, बल्कि वो माहौल है जिसमें ये आंकड़ा बरकरार रखा गया है। अगर दुनिया भर के बाजारों पर नजर डाली जाए ना, तो हर तरफ भारी आर्थिक अनिश्चितता है। हाँ वो तो है, मार्केट काफी ऊपर नीचे हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, महंगाई दर भी ऊपर नीचे होती है। ऐसे में किसी भी आम फिक्स्ड डिपॉजिट या सुरक्षित निवेश विकल्प को देखें तो 8.25% का सुनिश्चित और वो भी टैक्स फ्री रिटर्न मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है। हाँ, EPFO ने लगातार कई सालों से 8% से ऊपर का रिटर्न बनाए रखा है। मेरा मानना है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है, मतलब ये कैसे मुमकिन है? जब दुनिया भर के बैंक्स अपनी ब्याज दरें घटा रहे हैं तो EPFO इतना मजबूत रिटर्न कैसे दे पा रहा है? क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति है? रणनीति बहुत ही स्पष्ट और अनुशासित है। अच्छा। हाँ, इसका मुख्य कारण है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और दूसरे सुरक्षित उपकरणों में किया गया उनका बेहतरीन निवेश। ETF, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल, अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ETF शेयर बाजार की उन टॉप कंपनियों का एक गुलदस्ता है जो लगातार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती हैं। ओके। तो EPFO अपना सारा पैसा सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स में ही नहीं रखता, बल्कि इस गुलदस्ते में भी थोड़ा हिस्सा निवेश करता है, जिससे रिटर्न बेहतर मिलता है। एकदम सही, जिससे बेहतरीन रिटर्न मिलता है। और सबसे खास बात यह है कि बोर्ड इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि ये रिटर्न ब्याज खाते पर कोई अतिरिक्त या अनावश्यक दबाव डाले बिना ही दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा निवेश किया जा रहा है उसकी क्रेडिट प्रोफाइल बहुत ही सॉलिड है। बहुत सॉलिड है। तो आम कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। ये जानकर तसल्ली होती है कि जीवन भर की कमाई किसी जोखिम भरे जुए में नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बेहद संतुलित और सुरक्षित तरीके से बढ़ाई जा रही है। सही कहा। और एक बार सरकार से अधिसूचना जारी हो जाए तो ये 8.25% का ब्याज सीधा सब्सक्राइबर्स के खातों में आ जाएगा। क्या बात है। अब यहाँ से उस सर्दियों की जैकेट वाले उदाहरण की तरफ वापस लौटते हैं जिसका जिक्र मैंने एकदम शुरुआत में किया था। हाँ, जो कि बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी थी। शुक्रिया। तो ये जुड़ा है निष्क्रिय खातों या इनऑपरेटिव अकाउंट्स की समस्या से। ये एक ऐसी समस्या है जो सच में दशकों से सिस्टम को परेशान कर रही थी। 3 साल तक। जी, 3 साल तक। तो उस खाते को इनऑपरेटिव या निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। और ऐसा होता क्यों है? मुझे लगता है अक्सर लोग जब अपनी पहली या दूसरी नौकरी बदलते हैं तो पुराने PF खाते में पड़ी छोटी मोटी रकम को भूल जाते हैं। बिल्कुल भूल जाते हैं या आलस कर जाते हैं। हाँ, ये सोचकर छोड़ देते हैं कि कौन इतने फॉर्म भरेगा, कौन दफ्तरों के चक्कर काटेगा। एकदम सही बात है। लेकिन अब जो हुआ है ना, वो सच में बहुत ही क्रांतिकारी है। बोर्ड ने इन निष्क्रिय खातों के लिए एक ऑटो क्लेम सेटलमेंट पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यानी बिना मांगे पैसा वापस? बिल्कुल बिना मांगे। इस पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में उन खातों को चुना गया है जिनमें 1000 रुपए या उससे कम की लावारिस राशि पड़ी है। और अगर दस्तावेजों के आंकड़ों की बात करें तो ऐसे लगभग 1.33 लाख खाते हैं। जी,
जिनमें करीब 5.68 करोड़ रुपए जमा है। अब तक होता यह था कि ये पैसा सिस्टम में बस कहीं एक कोने में पड़ा रहता था, किसी को पता भी नहीं होता था। बिल्कुल। लेकिन अब ये सारा पैसा सीधे उन कर्मचारियों के बैंक खातों में चला जाएगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके लिए किसी को कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई नया क्लेम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। सिस्टम खुद ये चेक करेगा कि वो पुराना खाता किस आधार नंबर से जुड़ा है और उस आधार से लिंक हुए वर्तमान ईपीएफओ बैंक खाते में पैसा सीधे ट्रांसफर कर देगा। तो ये दशकों पुरानी लाल फीताशाही और प्रक्रिया में होने वाली देरी पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। सही कहा। इस कदम को अगर हम थोड़े बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ 1000 रुपए वापस करने की बात नहीं है। क्लीन अप। जी, जब ऐसे छोटे छोटे लाखों खाते बंद हो जाएंगे तो सिस्टम का बोझ काफी कम हो जाएगा। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये सफल रहा, जो कि तकनीकी रूप से होना ही चाहिए, हाँ, टेक्नोलॉजी तो है ही, तो आने वाले समय में इसे 1000 रुपए से ज्यादा वाली रकम के लिए भी लागू किया जा सकता है। यह दिखाता है कि संगठन अब पूरी तरह से सदस्य केंद्रित यानी मेंबर सेंट्रिक हो चुका है। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। खैर, कर्मचारियों की तो बात हो गई, अब थोड़ा उन कंपनियों या प्रतिष्ठानों की तरफ चलते हैं जिन्हें छूट प्राप्त या एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा है। दस्तावेजों में एक खास वन टाइम एमनेस्टी स्कीम का जिक्र है जी, जो 6 महीने के लिए लाई गई है। तो ये एमनेस्टी स्कीम आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए पहले इस बात को समझना होगा कि ये एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट क्या होते हैं। हाँ, बताइए। देखिए, कुछ बड़ी कंपनियां या ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो अपने कर्मचारियों का पीएफ खुद ही मैनेज करते हैं। ओके। यानी वो ईपीएफओ को पैसा नहीं देते बल्कि खुद का एक ट्रस्ट बनाकर उसे चलाते हैं। ऐसे बहुत से ट्रस्ट हैं जिन्हें इनकम टैक्स विभाग से तो मान्यता मिल गई है। अच्छा। लेकिन ईपीएफओ और एमपी एक्ट 1952 के तहत उन्हें अभी तक आधिकारिक छूट या कवर नहीं मिला है। तो इससे क्या होता है? इसके कारण बहुत सारे कानूनी विवाद पैदा हो जाते हैं। और कानूनी विवाद का मतलब है सालों साल कोर्ट के चक्कर काटना, बिल्कुल, पेनाल्टी लगना, और सबसे बड़ा नुकसान ये कि कर्मचारियों का पैसा बीच में अटक जाना। एकदम सही। और इसीलिए ये 6 महीने की विशेष एमनेस्टी स्कीम लाई गई है। तो इसके नियम क्या है? इस योजना का सीधा सा नियम है, अगर इन कंपनियों या ट्रस्टों ने अपने कर्मचारियों को वो सारे फायदे और रिटर्न दे दिए हैं जो ईपीएफओ की वैधानिक योजना के बराबर हैं या उससे बेहतर है। जी, या उससे बेहतर हैं, तो सरकार कह रही है कि हम आपकी पुरानी गलतियों, हर्जाने और पेनल्टी को माफ कर देंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे फायदा ये होगा कि जो 100 से ज्यादा सक्रिय कानूनी विवाद चल रहे हैं वो तुरंत खत्म हो जाएंगे। कंपनियों का सिरदर्द कम होगा और हजारों ट्रस्ट सदस्यों को इन फालतू की कानूनी उलझनों से आजादी मिलेगी। कानूनी विवादों को सुलझाने का ये बहुत ही समझदारी भरा और प्रैक्टिकल तरीका है। बिल्कुल। इसके साथ ही इन छूट प्राप्त कंपनियों के लिए एक नई एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी लागू की गई है। हाँ, डिजिटल एसओपी। पहले इन कंपनियों के ऑडिट और कामकाज के लिए 4 अलग-अलग एसओपी और एक मोटा सा मैनुअल हुआ करता था, जो काफी थकाने वाला था। लेकिन अब इन सबको मिलाकर एक सिंगल एंड टू एंड डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार कर दिया गया है। मैं इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार में सुगमता का एक बेहतरीन उदाहरण कहूंगा। वो कैसे? जब कोई प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल हो जाती है ना, तो अनुपालन या कंप्लायंस का जो बोझ होता है वो अपने आप आधा हो जाता है। हाँ, कागजी कार्रवाई कम हो जाती है। बिल्कुल। अब पुराने फंड को सरेंडर करना हो या ट्रांसफर करना हो, सब कुछ ऑनलाइन होगा। इसके अलावा जो रिस्क बेस्ड ऑडिट है वो भी ऑनलाइन ही होगा। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। जी, और जो कंपनियां नियमों का सही से पालन करती हैं उन्हें फालतू की कागजी कार्रवाई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि पूरे सिस्टम की जबरदस्त सफाई हो रही है। एकदम सही कहा आपने। और जब सिस्टम साफ होता है तो उसका सीधा असर परफॉर्मेंस पर दिखता है। बिल्कुल दिखता है। ईपीएफओ के 24-25 के वार्षिक रिपोर्ट कार्ड के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। बहुत ही विशाल आंकड़े हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 3,25,628.81 करोड़ रुपए का योगदान प्राप्त हुआ है। जी, ये रकम कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। और सिर्फ योगदान ही नहीं, जरा जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी देखिए। हाँ, बताइए। लगभग 2.86 लाख नए प्रतिष्ठान ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। बाप रे। और 1.22 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य जुड़े हैं। ये तो सच में बहुत बड़ा आंकड़ा है। जब सिस्टम डिजिटल होता है ना, तो उसकी क्षमता कितनी बढ़ जाती है, इसका सबसे बड़ा सबूत है दावों या क्लेम्स का निपटारा। इस एक साल में 6 करोड़ से ज्यादा क्लेम सेटल किए गए हैं। 6 करोड़ क्लेम्स, ये वाकई में एक विशाल आंकड़ा है। और इसमें 69,983 ईडीएलआई क्लेम भी शामिल है। बिल्कुल। इसके साथ ही 17 लाख से ज्यादा शिकायतों का समाधान हुआ है और करीब 40 लाख फोन कॉल्स अटेंड की गई हैं। सही कहा। लेकिन एक आम कर्मचारी के लिए इन भारी भरकम आंकड़ों का असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब किसी कर्मचारी को अपने ही पैसे की जरूरत होती है तो उसे महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। हाँ, जो कि पहले होता था। जी। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव भी है जो भविष्य की मजबूत नींव रख रहा है। वो क्या है? सीबीटी ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत मौजूदा योजनाओं को नए ढांचे में ढालने के लिए नई ईपीएफओ योजना 2026
EPS 2026 यानी पेंशन योजना और EDLI योजना 2026 यानी बीमा योजना, इन तीनों को मंजूरी दे दी है। तो ये एक तरह से पूरा अपग्रेड है। बिल्कुल, ये बदलाव सुनिश्चित करेगा कि आने वाले समय में PF, पेंशन और बीमा का प्रशासन कानूनी रूप से और अधिक आधुनिक और पारदर्शी हो जाए। और पिछले एक साल में जो नागरिक केंद्रित सुधार हुए हैं वो सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं। जैसे कि सबसे बेहतरीन उदाहरण है चेहरे की पहचान या फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंकों की लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता। जी। बस मोबाइल से चेहरा स्कैन किया और काम हो गया। और इसके अलावा नियमों में जो लचीलापन लाया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। किन नियमों में? जैसे कि EPS यानी पेंशन स्कीम, पहले इसमें से पैसे निकालने के बहुत कड़े नियम हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 1 महीने के योगदान के बाद भी निकासी का लाभ दिया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी सुविधा है। और EDLI को ही ले लीजिए, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। बिल्कुल, ये वो जीवन बीमा है जो PF खाते के साथ मुफ्त मिलता है। अब उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने लगातार 12 महीने काम किया है, इस बीमा लाभ की सीमा बढ़ाकर 2,50,000 से 7 लाख रुपए तक कर दी गई है। परिवार की सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो 7 लाख रुपए का कवर बहुत बड़ा सहारा होता है। बहुत बड़ा सहारा। और एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात दस्तावेजों में ये भी थी कि अनुपालन को सरल बनाने के लिए 14 जून 2024 से दंडात्मक हर्जाने की दर को फिक्स कर दिया गया है। जी, 1% प्रति माह। सही। इन सभी आधुनिक और IT आधारित सुधारों का ही नतीजा है कि EPFO को हाल ही में 7 ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी पहचान है। बिल्कुल। फर्जी UAN लिंकिंग को हटाना हो या फिर बिना UAN लॉगिन वाले लोगों के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन जमा करने की सुविधा देना हो, सिस्टम लगातार स्मार्ट हो रहा है। एकदम सही। चलिए अब इन घरेलू सुधारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा को देश की सीमाओं के पार ले चलते हैं। जरूर। देखिए, भारतीय टैलेंट आज पूरी दुनिया में काम कर रहा है। हाँ, ग्लोबल हो गए सब। ऐसे में जुलाई 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक बहुत ही अहम डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन या DCC समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कि सीटा के तहत हुआ था। जी, व्यापक और आर्थिक व्यापार समझौते के तहत, और ये दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में हुआ। तो इस समझौते को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। जी, बताइए। मान लीजिए एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी कंपनी उसे कुछ सालों के लिए लंदन भेज देती है। तो पहले क्या होता था और अब इस समझौते से उसे क्या फायदा होगा? मैं समझाता हूँ। पहले उस इंजीनियर और उसकी कंपनी को एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जिसे हम दोहरी सामाजिक सुरक्षा का बोझ कहते हैं। ओके। यानी उसे भारत में भी अपना PF कटवाना पड़ता था और UK के सिस्टम में भी योगदान देना पड़ता था। दोनों जगह? हाँ, और UK वाले सिस्टम का पूरा फायदा उसे शायद कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि वो कुछ सालों में वापस आ जाता। तो ये तो साफ साफ नुकसान था। बिल्कुल, लेकिन इस नए DCC समझौते के बाद उसे दोनों जगह पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वाह। इससे कंपनियों की लागत बचेगी और भारतीय पेशेवरों की वैश्विक बाजार में लागत प्रतिस्पर्धा या कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। यानी विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय टैलेंट को हायर करना अब और भी किफायती और आसान हो जाएगा। एकदम सही समझे आप। ये तो वैश्विक स्तर की बहुत अच्छी खबर हो गई। अब अपने देश के भीतर EPFO के दफ्तरों को और तेज बनाने के लिए भी एक कदम उठाया गया है। IBPS वाला कदम। जी, भर्ती परीक्षाओं के लिए अब IBPS को मंजूरी दे दी गई है। ये वही संस्था है ना जो देश के तमाम बड़े बैंकों के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है? बिल्कुल वही संस्था है। अब वो EPFO के लिए सीधी भर्ती और प्रमोशन की परीक्षाएं कराएगी। इसका सीधा असर क्या होगा? इसका सीधा असर ये होगा कि जो खाली पद हैं वो तेजी से भरेंगे और आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं की रफ्तार और ज्यादा बढ़ेगी। रफ्तार तो बढ़ेगी, लेकिन इस पूरी चर्चा में सबसे बड़ा और सबसे भारी आंकड़ा अभी भी बाकी है। अच्छा, कौन सा आंकड़ा? ये सीधे तौर पर वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा है। मार्च 2025 तक EPFO का कुल संचित कोष, यानी जो टोटल पैसा उनके पास जमा है, जी, वो 28.34 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 28.34 लाख करोड़ रुपए। हाँ, इस रकम की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सवाल है। जब इतना बड़ा पैसा इक्विटी, ETF और बाजार के अन्य उपकरणों में निवेश किया जाता है, तो क्या ये बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? मेरा मतलब है, शेयर बाजार तो कभी भी गिर सकता है ना? जी बिल्कुल। तो करोड़ों कर्मचारियों के रिटायरमेंट के पैसे को इस तरह बाजार के भरोसे छोड़ना कितना सुरक्षित है? देखिए, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है और ये हर कर्मचारी के मन में आता ही है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसी जोखिम को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ने निवेश की नई और बेहद सख्त SOPs लागू की हैं। अच्छा। उन्होंने सिर्फ पैसा बाजार में नहीं डाला है, बल्कि सुरक्षा के कई लेयर बनाए हैं। जैसे कि? उदाहरण के लिए कॉल और पुट ऑप्शन का इस्तेमाल। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपनी नई गाड़ी का बीमा कराते हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ तो बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करती है। बिल्कुल। उसी तरह जो पुट ऑप्शन है वो शेयर बाजार में निवेश किए गए पोर्टफोलियो के लिए एक तरह का बीमा है। ओहो। अगर बाजार अचानक से क्रैश कर जाए तो ये बीमा सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों का पैसा न डूबे। बेहतरीन। मतलब जो भी रिस्क है
उसे पूरी तरह से हेज किया जा रहा है, उसे कवर किया जा रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा इक्विटी ETF और लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए अब एक वार्षिक सिप अप्रोच अपनाया गया है। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, इसका मतलब है कि सारा पैसा एक साथ बाजार में नहीं झोंका जाता, बल्कि धीरे धीरे किश्तों में निवेश किया जाता है, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का जो असर है वो कम हो सके। एकदम सही। और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में पैसा इसलिए रखा जाता है ताकि जब भी दामों का भुगतान करना हो तो तुरंत कैश उपलब्ध रहे, लिक्विडिटी बनी रहे। जी। और इन सब पर 24 घंटे नजर रखने के लिए एक इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग सेल या IMC को और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। ये एक बहुत ही सुरक्षित ढांचा लगता है। ये बहुस्तरीय ऑडिट और अप्रूवल मैट्रिक्स ये तय करता है कि एक एक पैसा पूरी जिम्मेदारी के साथ ही निवेश हो। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो बहुत ही स्पष्ट है। बिल्कुल स्पष्ट है। EPFO अब वो पुराना सरकारी दफ्तर नहीं रहा जहां धूल खाती फाइलों के अंबार लगे होते थे और एक छोटे से काम के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते थे। हाँ, आज ये एक बेहद प्रोएक्टिव, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी सामाजिक सुरक्षा ढांचा बन चुका है। सही कहा। और श्रोताओं के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सारे नीतिगत बदलाव सिर्फ कागजों पर लिखी बातें नहीं हैं। इनका असल जिंदगी में बहुत महत्व है। जी। जब 8.25% का स्थिर और सुरक्षित रिटर्न मिलता है, या जब पुराने भूल चुके खाते का पैसा अपने आप बैंक में आ जाता है बिना मांगे, तो ये सिस्टम के पारदर्शी और आधुनिक होने का सीधा सबूत है। ये लोगों के पैसे और उनके भविष्य दोनों की सुरक्षा की गारंटी है। बिल्कुल। और अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर गौर करते हैं। जी बताइए। आज जिस तरह के बदलावों पर चर्चा हुई, जैसे 1000 रुपए से कम के बैलेंस का खुद ब खुद खाते में आ जाना, या जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए सिर्फ मोबाइल से चेहरा स्कैन कर लेना, इन सब को देखकर एक सवाल मन में जरूर उठता है। क्या सवाल? क्या वो दिन दूर है जब हमें अपनी पूरी जिंदगी में रिटायरमेंट, PF या पेंशन के लिए कभी कोई फॉर्म भरना ही नहीं पड़ेगा? ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। क्या भविष्य की सामाजिक सुरक्षा पूरी तरह से अदृश्य और ऑटोमेटेड होने वाली है? यहाँ सिस्टम हमारी जरूरतों को हमारे क्लेम करने से पहले ही समझ लेगा और हमारे बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कर देगा। यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। तो श्रोताओं को इस दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ छोड़ते हुए आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।